Dear students, let us study our next topic, important topic, rate law expression and specific reaction rate. हमने प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ मॉस एक्शन की बात की। व्हाट इज लॉ ऑफ मॉस एक्शन, फिर से उसको एक बार डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मॉस एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर equal to their respective stoichiometric. It was given by Gulberg and Wick 1867. For example, for a general reaction, AA plus BB gives product where small a, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, where small a is stoichiometric coefficient, small b is stoichiometric coefficient, capital A and capital B are reactants. Small a, small b stoichiometric coefficient मतलब it may be 1, it may be 2, it may be 3. होल नंबर में होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है बच्चे। So rate as per this equation, ने क्या बोला, rate of reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant, that is product of A and B, raised to power equal to their respective stoichiometric coefficient, that is raised to power A and B. Capital A raised to power A, small a, capital B raised to power small b. Our rate is equal to K into A raised to power A, B raised to power. What is small k? Proportionality constant. This equation is called equation for law of Mauss action. ठीक है बच्चे। अब experiment, this equation is just based on the balanced chemical equation which you wrote. बिना एक्सपेरिमेंट नहीं किया आपने रिएक्शन की इक्वेशन ली उसको बैलेंस किया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे आपने उसके ऊपर लॉ ऑफ मॉस एक्शन लगाया, तो आपने कहा एज पर लॉ ऑफ मॉस एक्शन उसकी डेफिनेशन के हिसाब से दिस मस्ट बी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो बच्चे क्या देखा गया, रेट ऑफ रिएक्शन मे नॉट डिपेंड अपॉन ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स एज रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस्ड इक्वेशन। जब एक्सपेरिमेंट किया गया रिएक्शंस के ऊपर तो ये देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन उन सभी कंसंट्रेटेड टर्म पे डिपेंड नहीं भी कर सकता जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिखाई होती। ये नॉट डिपेंड बोला हुआ है, इट मे डिपेंड आल्सो, ना डिपेंड कर भी सकता बच्चे और नहीं। हम अभी जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम ये मान के चलेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा डिपेंड नहीं किया over all the constant term as represented in balanced equation. Let us suppose that it depend upon alpha concentrated term of A and beta concentrated term of B. experiment से हमने देखा it depend upon alpha concentrated term of A and beta of B. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे स्मॉल a सपोज करें 2 है, अल्फा 2 नहीं होगा बच्चे, अल्फा से 1 होगा, है ना, मतलब it is different from what? Stoichiometric coefficient. So experimentally we find that rate of reaction may not depend upon all the concentrated terms as represented in balanced equation. Let us, in this case, we suppose that when we did the experiment, we found that it depend upon alpha concentrated term of A and beta concentrated term of B. तो हमारी फिर रेट इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे? रेट इज प्रोपोर्शनल टू A raised power alpha, B raised power beta. What is alpha and beta? Alpha and beta are the number of concentrated terms on which rate actually depend. On which rate actually depend as determined experiment. This equation is called as rate law equation. जो ऊपर वाली इक्वेशन है बच्चे, that is theoretical one and that is called as law of Mauss action equation. और ये वाली इक्वेशन जो है it is based on experiment and it is called as rate law equation. What is K? K is called as rate constant or velocity constant. अब हमने नेक्स्ट टर्म को डिफाइन करना, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये होगी रेट लॉ इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी, जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए आपने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या ली बच्चे? यूनिटी 1, दैट इज A और B की मोलर कंसंट्रेशन आपने 1 मोल पर ली। उस केस में इस रेट लॉ इक्वेशन में इस वैल्यू को इंसर्ट करें, 1
1 is for alpha, 1 is for beta, तो 1 रहा, तो rate is equal to k. तो from here we can define what? Rate constant. Rate constant को हम यहाँ define कर सकते हैं. What is rate constant? So rate constant may be defined as rate of reaction. Rate constant is equal to rate of reaction. लेकिन कब? Specific condition में. कब? When molar concentration of each of reactant is taken as unit. क्योंकि हमने conditions को specify कर दिया, हमने molar concentration of each of reactant unitarily specify कर दिया. So that is why this is also called as specific reaction rate. Rate constant is also called as what? Specific reaction rate. What is specific reaction rate? It is the rate of reaction when molar concentration of each of reactant is taken as unit. क्या बच्चे? अब इसमें मैंने आपको बताया, पहले बता दिया कि जो इक्वेशन सेकंड है इसको हम कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन. It differs from law of mass action in the fact that whereas rate law state that rate of reaction depend upon concentrated term on which rate actually depend. जो रेट लॉ इक्वेशन है वो एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है, वो हमें क्या बताती है? नंबर ऑफ कंसंट्रेटेड टर्म ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड. लेकिन जो लॉ ऑफ मास एक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन सिंपल स्टोइकोमेट्री, बैलेंस्ड इक्वेशन, प्रैक्टिकल. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है बच्चे, रेट लॉ इक्वेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन. लेकिन याद रखिए बच्चे, इन सर्टेन रिएक्शंस A, small a and alpha may be same, small b and small beta may be same. जरूरी नहीं है कि सभी रिएक्शन में ये डिफरेंट हो, ठीक है ना. लेकिन हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी बच्चे? एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन. दैट इज द एक्चुअल इक्वेशन. नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज बेस्ड ऑन रेट लॉ इक्वेशन. सिंपल, इट इज बेस्ड ऑन रेट लॉ इक्वेशन. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे? रेट लॉ इक्वेशन. इट इज नंबर ऑफ कंसंट्रेटेड टर्म्स ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड. रेट लॉ इक्वेशन लिखिए. रेट लॉ इक्वेशन कहां से आएगी? एक्सपेरिमेंट से. उसमें देखिए नंबर ऑफ कंसंट्रेटेड टर्म जिस पे रेट डिपेंड करता, दैट इज ऑर्डर. अगर 3 पे डिपेंड करता तो ऑर्डर 3 है, 2 पे डिपेंड करता तो ऑर्डर 2 है. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट, फिर से रिपीट कर रहे हैं आप, इट इज नॉट नेसेसरी दैट concentration of all reactants participating in the chemical reaction may determine rate of reaction. It is not necessary बोला मैं, मतलब हो भी सकता, पॉसिबल हो भी सकता, लेकिन कुछ रिएक्शन में पॉसिबल नहीं भी होगा. क्या बच्चे? So it is not necessary that concentration of all reactants participating in the chemical reaction may determine rate of reaction. The dependence of reaction rate on concentration of reactant is given by rate law equation. जो सही इक्वेशन है वो कौन सी है बच्चे? रेट लॉ इक्वेशन. कौन सी कंसंट्रेटेड टर्म पे रेट डिपेंड करता? दैट इज गिवन बाय रेट लॉ इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज सम ऑफ पावर्स टू व्हिच द कंसंट्रेटेड टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन. बेसिकली मैंने जैसे बोला कि व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर है कंसंट्रेटेड टर्म ऑन व्हिच रेट एक्चुअली डिपेंड. कहां से निकलेगा वो? जैसे आप कहेंगे कि रेट, इस इक्वेशन को देखते हैं बच्चे, कि रेट किस पे डिपेंड किया? अल्फा और बीटा पे. अल्फा और बीटा पे. तो ऑर्डर कहां से निकला? अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज दिस? सम ऑफ पावर्स टू व्हिच कंसंट्रेटेड टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन. रेट लॉ इक्वेशन में कंटेंट टर्म्स को जिस पावर से आपने रेज किया, एंड व्हाट इज दैट पावर? दैट पावर इज कंसंट्रेटेड टर्म ऑन व्हिच रेट एक्चुअली डिपेंड. ठीक है बच्चे, तो दिस इज सिंपल ऑर्डर. जब सिंपल तरीके से बोलना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आल्सो बी डिफाइंड एज सम ऑफ कंसंट्रेटेड टर्म on which rate of reaction actually. जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा, A plus BB gives product. If experimentally the rate is found to depend upon alpha concentrated term of A and beta of B. एक्सपेरिमेंट से हमने देखा it does not depend upon small a of A and small b of B. It depend upon alpha of A and beta of B. तो रेट लॉ इक्वेशन क्या होगी? A into A raised power alpha, B raised power beta. उसी को रिपीट कर जो ऊपर लिखी थी हमने रेट लॉ इक्वेशन. ऑर्डर क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा. सिंपल. व्हाट इज ऑर्डर? सम ऑफ कंसंट्रेटेड टर्म टू व्हिच द sum of powers to which, not consonant, sum of powers to which the consonant terms are raised in the rate law equation. Sum of powers to which consonant terms are raised in the rate law equation.
दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर क्या हुआ बच्चे, ए प्लस बी नहीं हुआ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, आप देखेंगे इट मे बी इन होल नंबर, इट मे बी इन फ्रैक्शन और इट मे बी इन जीरो। एग्जांपल्स डिस्कस करें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, होप आपको ये समझ आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा।